नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे कि दुख हमें क्यों होता है। उसके बारे में हमने चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे या किसी से बात करेंगे तो दुख हल्का होगा या बढ़ेगा। यही है ना आज के प्रश्न। तो दुख है क्या, ये पहले सोचेंगे। दुख हमें तभी होता है तब जब हमारे मन में कोई इच्छा होगी और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो जो शारीरिक दुख होता है हमें, bodily pain, bodily pain will happen for a certain purpose. Bodily pain अगर है, so it is an indication by our body or by nature that something is wrong. कहीं कुछ गड़बड़ है. That's why there is pain. Pain happens because nature wants to attract our attention to where the pain is happening. The reason nature wants us to pay attention to pain is because by paying attention, we will do something to ease it. दुख में रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। सो उस दुख का निवारण करने के लिए हम कुछ करेंगे ऐसी अपेक्षा है। सो नेचर वांट्स अस टू पे अटेंशन टू आवर पेन एंड ट्राई टू रिमूव द पेन, रिलीव द पेन। दैट इज व्हाई पेन हैपेंस। अब इसका एक उदाहरण देते हैं हम लोग। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण ऐसा है कि इफ देर इज ए फ्रैक्चर इन योर बॉडी, समझ लो माई टो इज फ्रैक्चर्ड। मेरे पैर का जो अंगूठा है उसमें अगर फ्रैक्चर है तो क्या होगा? there will be pain in that area and the toe will swell. सूजन आ जाएगी उस पर। तो ये सूजन क्यों आती है? सूजन इसलिए आती है कि वो जो हिस्सा है हमारे शरीर का वो हिले ना। So the swelling happens because nature doesn't want us to move that area where the bone is broken. If we move that area, or if the area is moved, then the injury within the body can get aggravated. जहाँ हड्डी टूटी है वहां अगर हिलेगी तो वहां अंदर का जो हिस्सा है, द मसल्स or the flesh around the bone where it is broken, that may get damaged further, and it will take longer for the bone to rejoin and heal itself. इसलिए वो सूजन आती है। दैट इज नेचर्स फ्रैक्चर प्लास्टर। We do the same thing when we go to the doctor. The doctor will plaster that place up, will try to immobilize that area so that the bone will have a chance to heal. If we keep moving that area, then the bone will not rejoin and it will take longer to heal. That is why there is swelling. Nature will do it. Even if the doctor doesn't do it, nature will do it. Secondly, why does it pain? It pains like hell. अगर फ्रैक्चर हो गया होगा तो दुखेगा ना वहां पे। So when it pains, our attention will go to that area. तो हम उसके बारे में सोचेंगे। We will keep thinking about where the pain is happening. हमारा ध्यान अगर जहां पर दुख हो रहा है वहां पर जाएगा तो हमारी सारी जो प्राण शक्ति है ना, our attention, our consciousness, our awareness, it will be directed towards that area. जब हमारा ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाता है, so when our attention is focused on something, then the healing energy within our body is also focused at that place. Healing कैसे होता है? Healing
When oxygenated blood is focused in the area where healing is necessary, oxygenated blood will heal it, and it will also carry the impurities away from that area. अभी इसका एक उदाहरण ऐसा है कि अगर हम स्क्रीन देखेंगे काफ़ी देर तक, रात को देर तक अगर देखेंगे, तो ऐसा होगा कि हमारी आँख जो है ना वो लाल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आईज आर गेटिंग यूटिलाइज्ड, यूज्ड, therefore they require a lot more prana shakti or pranavayu or oxygen. So the blood will be supplied to oxygen for a longer period, longer than necessary, or the capillaries in the eye will sort of get swollen, and वहाँ पर आँख लाल हो जाएगी हमारी. So whenever we are utilizing a certain portion of our body, blood supply will be directed towards that area if we are paying attention, or even if we are not paying attention, we are utilizing that area. अब देखो हम योगासन क्यों करते हैं? योगासन इसलिए करते हैं सुबह उठकर, या स्ट्रेचिंग करते हैं. हम योगासन को छोड़ दो, जो कोई प्राणी होता है ना, जीव, कोई भी जीव, एनी एनिमल दैट स्लीप्स, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आवर पेट्स, या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भी देखो. जब वो बच्चा सोता है या पेट सोता है या हम भी सोते हैं, तो सोते हुए हमारे शरीर का कुछ हिस्सा हमारे शरीर से ही दबा होता है. सो ए पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज pressed because of the rest of the body. The body weight will press certain areas. पलंग पे भी अगर सोए सोए हों हम फिर भी, so in that area which is pressed, blood circulation will not happen efficiently. तो फिर सुबह उठ के क्या करेंगे हम? ऐसे अंगड़ाई लेंगे, कोई भी शरीर हो, इवन इफ इट इज ए पेट डॉग और ए कैट. और हम तो करते हैं ना, श्वानासन करते हैं योगासन करते हुए, या माजरासन करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो दबा हुआ हिस्सा होता है ना हमारे शरीर का, उसको हमने स्ट्रेच करना होता है, so that the blood vessels from that area are opened up, they get stretched, and circulation happens better. तो फिर हमें अच्छा लगता है. Why? Because the oxygenated blood is getting supplied to all parts of the body without any hindrance from the heart. हमारा जो रक्त होता है ना, blood, that gets purified in the heart by the oxygen we breathe in. So the oxygen we breathe in from the air will purify the blood in the heart. Then that purified blood, oxygenated blood, is transported throughout the body when the heart pumps. Oxygen is supplied to every part of the body. Carbon dioxide is picked up from every part of the body, brought back to the heart, diffused into the lungs, and we exhale it. This process happens continuously, starting when we are born until we are dead. ये प्रकृति की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है. इसमें अगर कोई बाधा आती है तो फिर हमें दुख होगा. So if you keep sleeping and some portion of your body remains pressed for a long time, then there will be numbness, yeah, there will be some pain, and then you will want to ease that pain. The reason pain happens in our body is because nature wants us to pay attention to it and do something about it. So this routine pain or the sense of numbness when we are asleep, that goes away by stretches. If there is a broken bone, then there is a swelling and also there is pain.
The longer there is pain, our attention will be focused on that. Blood supply will go towards that. That oxygenated blood supplied to that area, focused on that area, is going to help us heal faster. That is the reason we have pain. Now we talked about bodily pain. The same thing happens with the mental pain, emotional pain. If something disturbs us, then we keep thinking about it. So instead of thinking in a negative way, thinking, why is this happening to me? The positive way of thinking is, what can I do to relieve that pain? What can I do to relieve that emotional pain? In certain cases, certain pains are unavoidable. अगर हड्डी टूट चुकी है तो उसको हील होने में समय लगेगा, तो जितना समय उसमें लगेगा उतना समय वो दुख जो है उसको हमें सहन करना पड़ेगा. There is no escape from that. This is the general principle of pain and the general principle of why pain happens, what we should do about it. If we are unable to fix it, अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है, तो then we seek professional help. जिसको पता है कि ये पेन क्यों होता है और उसको रिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं डॉक्टर. तो अगर हड्डी टूटी है तो हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ से कोई इलाज करवाएंगे अपना शरीर का, नहीं. सो देर इज नो रीजन टू इग्नोर पेन, but there is no reason to pay undue attention to the extent that you identify yourself with the pain. वो भी नहीं करना है. Do whatever you need to do to relieve yourself of the pain, and then ask yourself the question, who is getting the pain? The correct question is not why I am getting the pain. That is not the correct question. ये मुझे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दुख हो रहा है, ये नहीं है करेक्ट प्रश्न. जो करेक्ट प्रश्न है वो ये है कि ये पेन किसको हो रहा है. हु इज द वन हु इज सफरिंग. इसका उत्तर ढूंढने के लिए ही हमारे जीवन में समस्याएं भेजी जाती हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है. गीता से हम क्या सीखेंगे. गीता में पहले ही अध्याय में ऐसी एक समस्या भगवान अर्जुन के सामने उपस्थित कर देते हैं. अर्जुन जब तक गीता नहीं बताई गई थी उससे पहले तक कोई युद्ध हारा नहीं था. अर्जुन हैड नेवर लॉस्ट ए बैटल. तो अर्जुन का दूसरा एक नाम है, उसका नाम है विजय. विजय मीन्स ही हैज नेवर लॉस्ट ए बैटल येट. तो ये अर्जुन जब महाभारत के युद्ध के लिए मैदान में आता है कुरुक्षेत्र पर, तो कृष्ण से बहुत एरोगेंटली ऐसा कहता है कि कौन आया है मुझसे युद्ध करने के लिए, मुझे दिखा. शो मी हु हैज कम टू फाइट विद मी. आई हैव नेवर बीन डिफीटेड इन अ बैटल येट. देन हु डेयर्स टू कम फाइट विद मी, मुझे दिखाओ. तो अभी देखो, कृष्ण अगर रथ जो था उनका, कृष्ण वॉज द चैरियटर, सारथी थे ना वो अर्जुन के. चाहते तो रथ दुर्योधन दुशासन के सामने लाकर खड़ा कर सकते थे. अगर ऐसा होता, अगर कृष्ण ऐसा करते, तो युद्ध होने के लिए, युद्ध शुरू होने के लिए कोई देर लगती. नॉट पॉसिबल. क्योंकि दुर्योधन दुशासन के बारे में तो अर्जुन के मन में पहले से ही द्वेष था. अगर उनके सामने रथ खड़ा हो जाता तो युद्ध शुरू हो जाता. किंतु भगवान ने रथ द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य इनके सामने ला करके खड़ा किया. और सिर्फ खड़ा नहीं किया, चाबी भरी अर्जुन को. तुम देखना चाहते थे ना किससे लड़ाई करनी है, ये लो.
अपने गुरु के साथ और अपने पिताजी के चाचा जी के साथ, इनके साथ लड़ाई करनी। अब सोचो, अब बताओ, उन लोगों को देखने के बाद अर्जुन पंक्चर हो गया, उसकी हवा निकल गई सारी। तो ये थी समस्या, दुख हो गया। मैं अपने पिताजी के चाचा जी को कैसे मारूं, और मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने सारी ये धनुर्विद्या सीखी है उनको मैं कैसे मारूं? ये प्रश्न खड़ा हो गया ना, दुख हो गया। दुर्योधन दुशासन के सामने अगर जाते तो दुख की समस्या थी ही नहीं, दुख का कोई प्रश्न नहीं था। लड़ाई शुरू हो जाती और उनको वहीं के वहीं वो मार देता। पर भगवान को ऐसा करना नहीं था। भगवान को अर्जुन के मन से द्वेष को निकालना था। भगवान को अर्जुन के मन से उसकी जो देह बुद्धि थी या उसका जो जीव भाव था उसको निकालना था। अर्जुन को पहले ये सत्य समझाना था कि वो कौन है, उसका उस समय कर्तव्य क्या है। ये समझाने के लिए अर्जुन के जीवन में दुख का प्रसंग भगवान ने खड़ा किया, प्रस्तुत किया, उपस्थित किया। तब जाकर अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे भगवान से और भगवान ने उसके उत्तर दिए। ऐसी अर्जुन की और भगवान की दोनों की हम पर कृपा है कि हमारे मन में जो जो प्रश्न आते हैं उनका समाधान हमें गीता में मिले। जीवन के जो प्रश्न है, आदि भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर और आदि दैविक स्तर पर, एट द फिजिकल लेवल, एट द मेंटल लेवल, एट द स्पिरिचुअल लेवल। आदि भौतिक, फिजिकल, आदि दैविक, मेंटल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली वो, देर आर वेज इन विच आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक आर डिफाइंड, वो देख सकते हैं हम। दीज काइंड्स ऑफ दुख या डेंजर्स, उससे हमें आगे कैसे जाना है, इसका जो मार्गदर्शन है ये गीता हमें करती है। इसलिए हमें गीता का अध्ययन करना है, पाठ करना है, मनन करना है, सोचना है उसके बारे में। दुख से अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर रोते बैठेंगे और ये सोचेंगे कि ये दुख मुझे ही क्यों हो रहा है, बाकी लोग तो ठीक दिख रहे हैं, मेरे ही जीवन में और मेरे नसीब में ये दुख क्यों है। ये प्रश्न मेरे मन में आएगा। ये प्रश्न बराबर नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन। द करेक्ट क्वेश्चन इज कि किसको हो रहा है ये, हु इज द वन हु इज सफरिंग। इफ वी आस्क द करेक्ट क्वेश्चन देन वी विल गो टुवर्ड्स द करेक्ट आंसर। अर्जुन के मन में जो प्रश्न था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन he was considering himself this body. So based on this body, I happen to be the grand nephew of Bhishmacharya and the disciple of Dronacharya. कृष्ण ने दूसरे ही अध्याय में उसको समझाया अर्जुन को कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम देह हो, ये तुम नहीं हो। तुम शुद्ध आत्मा हो और आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। देह किसी किसी समय में, किसी विशिष्ट समय में इस जगत में आता है, बढ़ता है और फिर किसी विशिष्ट समय में नष्ट भी हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। किंतु हमारी जो आत्मा है उसका न कभी जन्म होता है, न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, न उसकी मृत्यु हो सकती है। ये सबसे पहले समझाया अर्जुन को दूसरे अध्याय में। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, उसने हजार प्रश्न पूछ डाले उसके बाद। अच्छा किया, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर या समाधान अगर हमें मिलता है
तो हमारा जीवन समृद्ध होता है, संपन्न होता है। और हमारे मन से प्रश्न जाने के बाद हमारा मन शांत भी हो जाता है। इस प्रकार से हमारा मन हमेशा शांत हो और शांत रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का चिंतन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर अगली बार फिर से मिलेंगे। नमस्ते।